Hare Krishna. Okay, I welcome you all. This is like a No, there is a lot of echo. sorry, is someone saying Echo something? is there. Echo is there. Echo is still there? Hare Krishna, Pranam. I think you will have to mute everyone. Then this echo will go. What I feel. Okay. Yes, Mataji, please mute everyone. All right. Okay. I'm trying to mute everyone, but somehow ho nahi raha. I don't know what's the mute participant entry. Can you request everyone to mute themselves? Yes. Okay. Somehow I don't know what are the settings here. I'm not able to mute everyone. So I request everyone to mute themselves. And when they are requested to speak, then they can unmute. Unmute, yes. Okay. Yeah. Thank you. Could you kindly, all of you, could you please mute yourself, everyone? यस माता जी, बट एक चीज है, नॉर्मली जब हम जूम करते हैं तो एक स्क्रीन पे 4-5 दिखते हैं, बट अभी सिर्फ एक ही दिख रहा है. We'll just figure that out. Meanwhile, just please everyone just mute yourself. I'm going to be sharing a PowerPoint presentation, so वो आपको दिखेगी, आप चिंता मत करो, है ना? ठीक है, आप सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को. इशिता माताजी, रिनी, please mute yourself, everyone. Okay. Hare Krishna. So, I hope everything is, the sound is clear. If it is not clear, kindly please message me so that I can read that. Or you can unmute yourself and tell me. It's clear for me, Mataji. It's clear now, Mataji. Right. Can you also see my screen right now? Hanji. All right. Okay. Right. Okay. Thank you all for joining. I welcome everyone here, and I want to offer my respectful and humble obeisances to everyone here. And we are trying to do this 3-day seminar on chanting Hare Krishna. Earlier, I don't know how many of you have attended the previous session we did, how to take care of Krishna, Krishna's holy name in this pandemic. So this is more or less like हम उसी सबको elaborate कर रहे हैं यहाँ पर. तो okay, so आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो चैट विंडो में डाल सकते हैं, नहीं तो at the end of the session we will have 15 minutes or 20 minutes solely for asking questions and answering them, right? So we will begin with prayers. So I request all of you also to chant. आप जहाँ पर भी हैं आप chant कीजिए मेरे साथ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सागरजातं सगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश
गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणकारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् दुःस्मृतं विपरीते स्यात् श्रीचैतन्यं कृष्णपदाय श्रीमते जयपताका नमोचार्य पादानि तायकपादानि श्रीपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी गौरवाणी चारणे माता जी कंचन आंटी का और मीता का स्पीकर ऑन है, माता जी उनको प्लीज बोल दीजिए। हाँ, आप सब लोग प्लीज म्यूट पे डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पर एको हो रही है, आवाज डिस्टरबेंस आ रही है। आप सब लोग म्यूट हो जाएंगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। Okay, I'm trying to mute some who are yeah, okay, can we start? I once again welcome everyone. Thank you for joining us. So, all glories to Srila Prabhupada. Let us take his blessings before we start. Mataji, is English okay कि हम mix करें कि हिंदी करें? सदगुरु सेवानंदिनी माताजी आप बताएंगे? हाँ, mix is okay. ठीक है, तो हम प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स लेते हैं और हमने ये जो एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि हम थोड़ा हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग के बारे में थोड़ा इन डेप्थ में और नॉलेज गेन करें, तो हमने इन दो बुक्स को रेफर किया है, नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम बाय श्रीला सच्चिदानंद स्वामी महाराज एंड हरिनाम चिंतामणि बाय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, उनकी बुक्स में से जो भी आप इसमें कंटेंट देखेंगे प्रेजेंटेशन में, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम दीस टू बुक्स। ओके, सो ये हमारा इंडेक्स पेज है। जस्ट टू टेल एवरीवन, सॉरी माता जी, एक सेकंड, आप चैट इनेबल कर डिसेबल कर दोगे, बिकॉज बीच में सब चैट में कुछ लिखते रहते हैं, स्क्रीन पे बहुत डिस्टरबेंस होता है। ओ अच्छा, I don't know how to do that, but मैंने सेटिंग्स में चैट डिसेबल हो जाता है। Oh, is it? Then nobody can look. आप लोग मत लिखिए, है ना? वैसे मैंने कुछ तो डिसेबल किया, बट आई डोंट नो इफ इट्स वर्किंग और नॉट। बट आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक प्रेजेंटेशन चल रहा है तब तक आप कुछ मत लिखिए और अपने फोन्स को म्यूट पे डाल दीजिए, क्योंकि कहीं कहीं से डिस्टरबेंस अभी भी आ रही है ना? Because it will become very difficult if we kindly, all of you, please mute yourself, right? Hare Krishna. Okay, so हम index page पे थे। हाँ, ये index page है। This is to give you a brief overview कि हम क्या क्या cover करने वाले हैं। Day 1 में we are going to cover नाम तत्व from scriptures, from the acharyas, from Srila Prabhupada, and 7 effects of chanting the holy name. जप करने से क्या क्या हमारे ऊपर चेंजेस आएंगे, ठीक है? फिर है Day 2 जिसमें हम टाइप्स ऑफ चैंटिंग कवर करेंगे और 10 नाम अपराध कवर करेंगे। 10 नाम अपराध हम हर रोज जरूर उनके बारे में एक एक लाइन जरूर पढ़ते हैं, पर इनको थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे इनको प्रेजेंटेशन में,
और हर नाम अपराध की क्या कॉरेस्पॉन्डिंग रेमेडी है ये जानेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, थर्ड डे का प्रेजेंटेशन, कि हम ऑफेंसेस पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे अंदर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे जो अच्छा जप करने के बीच में क्या आड़े आ रहा है, हाँ, उसको हम कैसे इसको देखेंगे इंडिविजुअली, एंड देन देयर विल बी स्टेप्स हाउ आई कैन इम्प्रूव माय जप, राइट। किसी को इस स्टेज पे कुछ कहना है? ओके Mataji, Dandavat Pranam. धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी। I just wanted to know, would you be sharing the recording later on, or I mean, like we're making notes, but at times we miss out on some of the points. So since it's going to be quite a long, session, Yeah. days. Yeah, I am because a couple of devotees who could not attend, they asked me to make a recording, so I'm making a recording. So I'll share that with you. Thank you. Yeah, thank you. Okay. So today is day 1. So on day 1, we are going to study the Nam Tattva from these 3 sources, and we are going to learn the 7 effects of chanting the Hare Krishna Mahamantra. We offer our obeisances to Panch Tattva, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda, and we ask for their blessings so that we may be able to understand this very nicely and implement this in our lives. We also offer our obeisances to Adi Saraswati, who is Radharani herself. Can you see she's holding that veena? This is Radha Madhav deity from Mayapur, and we offer our obeisances to her so that she may bless us with right spiritual intent and right spiritual knowledge, so that we can understand and improve our chanting. Okay, now we begin with Padma Puran, right? So Padma Puran says, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Ras Vigraha Punya Shuddho Nitya Mukto Abhidnatva Nama Namino. So it is very beautifully telling us how. One moment, I can mute participants on entry. So, नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण के नाम को क्या बताया गया है? चिंतामणि के समान बताया गया है। हाँ, चिंतामणि का क्या अर्थ है, किसी को पता है? राधिका। माता जी, इसका मतलब होता है कि चिंता को खत्म करना। हाँ, जो चिंता को हर ले माता जी। Okay. Anybody else wants to guess? माता जी, इसका मतलब है it is like a wish stone. Whatever we ask for. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, आप थोड़ा जोर से बोलोगे? हाँ जी, whatever we ask for is whatever we can think of will be granted. Yes, चिंतामणि मतलब जिस चीज का चिंतन किया, हाँ, जिस चीज को डिजायर किया वो मिल गई, हाँ, that is चिंतामणि. So भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि के समान है, हाँ, कि जो डिजायर करते हैं वो मिल जाता है. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह. चैतन्य means it is living, it is conscious, it is not like a material sound vibration. So it is living. That is how it can make you feel happy, right? Ras vigraha, ras means mellows, huh? So ras vigraha matlab it's a form of transcendental mellows, huh? तो हमें रस का आस्वादन कराता है, एक ऐसे स्पिरिचुअल आनंद का आस्वादन कराता है, हाँ? पूर्ण शुद्धो, it is completely pure, and nitya mukto, it is eternally liberated. अभिन्नत्वान नाम नामिनो, क्योंकि कृष्ण और उनका नाम जो है वो अभिन्न है, इसलिए ये सारे उसके गुण हैं. So we'll just see here.
So Chintamani, because it bestows all spiritual benedictions. It is transcendently blissful. It is living form of transcendental mellows. It's completely pure. It's eternally liberated. It is as powerful as Krishna. Because Krishna and his name are non-different. So हमने last presentation में भी एक चर्चा की थी कि आप बता सकते हैं कि material world में सब कुछ जड़ है, पर केवल दो चीजें हैं जो चेतन हैं. क्या है वो? Holy name and the soul. Krishna and the soul. जीवा. Who answered that? किसने बोला ये? Neelam. Neelam. Thank you so much, Neelam. Yes. तो भगवान का नाम चेतन है और हम यानी जीव चेतन है ना? तो बाकी सब जो भी चीजें आप देख रहे हैं जिनमें हम आसक्ति लगाए हुए हैं, इतने अटैच्ड हो गए हैं, वो सब चीजें जो है मटेरियल हैं, जड़ हैं. ओके. तो श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोक है यहाँ पे. एक्चुअली बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बट हम कुछ ही कवर कर पाएंगे यहाँ पे. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम. Somebody would like to read the translation? Ishita, I can see you. Would you like to read the translation? Hare Krishna. Ishita, you're on mute. Yeah, okay. The same screen, right? Srimad Bhagavatam 12.13.23. No, read the translation only. Okay, yeah. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. Correct. So chanting of whose holy names destroys all sinful reactions. हाँ, जैसे भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा. Because Krishna and his name are non-different. So in Kali Yuga, where the Hare Krishna Mahamantra is chanted, so Sarvdharman Parityaja Naam Ekam Sharanam Raja can also be applied. Right? Also, we have a very famous shlok from Srimad Bhagavatam. Kalera doshnithe rajan asti hi eko mahan guna. Kirtanad eva Krishna se mukta sangha param rajet. So Kali Yuga, which is an ocean of faults, but there is one great quality in Kali Yuga, which is that अस्ति है को महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से. भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगः we get liberated and param vrajit we go to the highest destination. Right? Okay. Next. So we have Brihan Naradiya Puran, which talks about this shloka is again very famous. आप सबको ये पता होगा. कौन इस slide को पढ़ सकता है मेरे लिए? Who would like to read this shloka and the translation? हरे कृष्ण मैं read करूं? Yes, beta. करो. हरे नामे हरि नामे एव केवलम कलो नास्तेव एव गति अन्यथा. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Who read that? Jaya Mataji. Okay. Thank you so much, Jaya. Okay. So, Harer Naam eva kevalam. Huh? केवल हरि का नाम. माताजी, सॉरी, आप किससे आप रीड कर रहे हो? मैं लेट ज्वाइन इसलिए मुझे पता नहीं. एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जो सब देख पा रहे हैं. ओह अच्छा, सॉरी मैं ठीक है देख. तो क्या बताया गया? कलयुग में बृहन नारदीय पुराण में लिखा है 3.8.126 में कि केवल हरि का नाम और कलयुग में और कोई उपाय नहीं है. हाँ, तो आप में से कोई बता सकता है ये 3 बार क्यों बोला? ऊपर भी पहले भी 3 बार रिपीट किया कि हरि का नाम ही चलेगा. माता जी करने के लिए. हाँ, सॉरी. हरे कृष्ण माता जी. हाँ. माता जी, it is written 3 times because just to give emphasis and to give the ball to this quote कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है.
we say anything 3 times means it's very, very important, and it is the only thing. Yes, very well said. Who said that? Mataji Reena Mishra. Very nice. Thank you so much. So, very rightly said कि क्योंकि कलयुग में हमें बहुत जल्दी सब समझ में नहीं आता है ना? तो एक बार, दो बार, तीन बार, ये बार बार इसलिए बोला गया है ताकि हम ये बात जान सकें कि और कोई नाम हमें लिबरेट नहीं कर पाएगा. और कोई नाम हम चैंट करते हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम. But unless we chant the holy name of Krishna, it will not liberate us. We will not be liberated, right? There is no other option to the holy name of Shri Krishna. Yes, precisely. Thank you. Okay. So next, we have Kali Santaran Upanishad. Kali Santaran Upanishad was actually, it was spoken by Brahmaji when Narad Muni asked him questions. आप ये फोटो में देख सकते हैं कि नारद मुनि कुछ ज्ञान ले रहे हैं ब्रह्मा जी से. आपको सबको पता है कि हमारी संप्रदाय में नारद जी शिष्य हैं ब्रह्मा जी के. तो नारद जी ने पूछा, नारद जी को बहुत चिंता लगी थी कि कलयुग में लोगों का जो स्पिरिचुअल स्टेटस है वो इतना ज्यादा नीचे गिरने वाला है. हाँ, और वो अल्पायु, मंद बुद्धि और सब प्रकार से मंद होंगे, तो कैसे उनका लिबरेशन होगा, कैसे वो भगवान के धाम वापस जाएंगे? They will be suffering eternally. Will they be just going to hell again and again? There's no respite. तो ब्रह्मा जी ने बोला कि उसको रिकॉर्ड किया गया कली संतरण उपनिषद में. ये जो उपनिषद है, एक उपनिषद है, and it has only 11 श्लोकास. and इसमें ये है, इसमें बताया गया है कि उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र बताया और बोला नामना कली कल्मष नाशनम नातः परत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. हाँ, उन्होंने बोला कि सारे वेदों में मैंने देख लिया. अब ब्रह्मा जी हैज द मोस्ट नॉलेज. ब्रह्मा जी को ज्ञान स्वयं विष्णु ने दिया है ना? He is the most intelligent living entity in the whole of universe. हाँ, so what is he saying? ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, यही कली के कल्मशों को नाश करेगा. नातः परत्रोपाय, इसके ऊपर और कोई उपाय नहीं है. हाँ, so he is the one who's conclusively telling us. So his word is really final for us, right? So that is how Hare Krishna Mahamantra here. Okay, बृहद विष्णु पुराण है जिसमें बताया गया है कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगते हैं तो हमारे पाप सारे क्षमन हो जाते हैं. इवन उससे ज्यादा क्षमन हो जाते हैं जितने कि हम कर सकते हैं. हाँ, ऑल्सो एक कहानी आती है जिसमें बताया जाता है, मतलब देयर इज अ स्टेटमेंट इन द शास्त्रास कि अगर कोई संकेत पूर्वक या फिर कोई परिहास से यानी मजाक में या कोई भुलावे से ही नाम ले ले भगवान का, हाँ, तो भी उसे फायदा होता है. हाँ, जैसे कोई अगर बोले मैं कृष्णा नगर जा रहा हूँ या मैं रामनगर जा रहा हूँ तो भी उसको बेनिफिट मिल रहा है. हाँ, या फिर हम कोई डिवोटी संकीर्तन लेके जा रहे हैं और कोई एनवियस लोग हैं सड़क पर, वो कह रहे हैं ये देखो आगे हरे कृष्णा वाले डिस्टर्ब करने के लिए सारा टाइम हरे कृष्णा करते रहते हैं, तो भी उन व्यक्तियों को फायदा हो रहा है ना? तो जिसने मजाक में बोला, मजाक उड़ाने के लिए बोला, किसी ने संकेत के बोला या ऐसे ही बोल दिया, सबको फायदा हो रहा है. तो इसमें एक कहानी आती है एक मुसलमान व्यक्ति की जिसने मीट खाया था, सड़ा हुआ मीट खा लिया उसने, और उसका पेट खराब हो गया और उसको बहुत लूज मोशंस हो रहे थे. तो वो जंगल में जाकर ही वाज इवैक्यूएटिंग हिमसेल्फ. एक ऐसा पॉइंट आया, ही वाज पासिंग स्टूल और वो उठ नहीं पा रहा था. तो जंगली पिग होता है ना, उसको बोर बोलते हैं, जंगली बोर बोलते हैं. तो बोर जो होते हैं वो स्टूल खाते हैं. हाँ, तो अब वो बोर वेट कर रहा था कि कभी व्यक्ति उठे और मैं इसका गरम गरम मल खाऊं. तो क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था व्यक्ति, तो बोर ने उसको अटैक कर दिया. हाँ, और उसको मार दिया, उसकी छाती पे अटैक कर दिया जिससे कि वो व्यक्ति मर गया. पर मरने से पहले उसने मुंह से एक आवाज निकाली, हराम. हाँ, हराम अगर आप जाने उर्दू में उसको बोलते हैं फॉरबिडन. हाँ,
हराम, हराम आपने सुना होगा ये शब्द, हाँ, तो उसने हराम बोला, लेकिन वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ। क्यों मोक्ष को प्राप्त हुआ? क्योंकि हा प्लस राम, हाँ, तो राम शब्द में इतनी ज्यादा पोटेंसी है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से अगर कोई अननोइंगली, अनइंटेंशनली या मजाक में भी चैंट करता है तो भी उसके पाप धुल जाते हैं। ऑल्सो इट इज सेड कि हरे कृष्णा महामंत्र में केवल भगवान का नाम है। जैसे बाकी सारे आप अगर मंत्रों को देखिए जिसमें कभी कहीं ओम होता है, कहीं नमः होता है, कहीं और अनेक अनेक शब्द होते हैं, पर इसमें 16 अक्षर में हरि, कृष्ण और राम, हाँ, कृष्ण 4 बार, राम 4 बार, हरि 8 बार, ऐसे करके आया है। तो दिस इज लाइक अ very compact name which is full of only the Lord's names. Also भगवान के 3 प्रकार के नाम बताए जाते हैं। एक तो होते हैं general names, है ना, which are called secondary names really. Secondary names में होते हैं जैसे सर्वव्यापी, सर्व साक्षी, हाँ, जो भगवान की एनर्जीज पर या भगवान की कैपेबिलिटीज पर बेस्ड होते हैं, तो वो सेकेंडरी नेम्स होते हैं। और कुछ होते हैं प्राइमरी नेम्स, जैसे गोविंद, गोपाल, उनकी लीलाओं पे बेस्ड होते हैं। और कुछ नेम्स होते हैं जो उनकी शक्ति के साथ जो इंटरैक्शन है उसके ऊपर वो नाम रखे जाते हैं, हाँ, जैसे कृष्ण, जैसे राम, हाँ, ये जो नाम है ये माधुर्य नाम बताए जाते हैं। तो अगर आप देखें हरे कृष्णा महामंत्र में ये जो नाम है ये केवल माधुर्य वाले नाम है सारे इसमें, which is like a consolidated form of nectar. So माधुर्य रस जो है भगवान का that is considered the most nectarian. So this Hare Krishna Mahamantra is full of nectar because it has the madhurya names of the Lord, right? फिर सबसे ज्यादा important बात हमने देखा कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने स्वयं बोला है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। He is the creator of the whole universe, so he knows the best, right? So these 3 are reasons. And also there's another 4th reason that the Lord, भगवान स्वयं आए ये हरे कृष्णा महामंत्र को बांटने के लिए, हाँ, तो और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो भगवान ने स्वयं आके घर घर जाके बांटा। So this is very unique. So this mantra is really precious. So we are very fortunate that Srila Prabhupada वो अपनी मर्सी से हमको ये मंत्र उन्होंने हमें कितनी कठिनाइयों के बाद जाने के बाद भी हमें ये मंत्र पहुंचाया। So this mantra is really special. So Chaitanya Charitamrit में अंत्य लीला में, हाँ, we have कृष्णास कविराज कह रहे हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लोयले पाए प्रेम धन, हाँ. So would you like to read this? Tanya, would you like to read the translation? Yes, Mataji. Yes. Of the 9 processes of devotional service, the most important is to always chant the holy name of the Lord. If one does so, avoiding the 10 kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of Godhead. Hare Krishna. Thank you. So हमें नवधा भक्ति पता है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया, हाँ, श्रवणम के बाद आता है कीर्तनम, हाँ, कीर्तन करना. The most important is to always chant the holy names of the Lord. हाँ, but एक बहुत important word है इस श्लोका में, निरपराधे. हाँ, आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, Mataji. So निरपराधे नाम लोयले, निरपराध. तो ये जो हमें ये 10 प्रकार के अपराध जो हम सुबह बोलते हैं वो हैं अपराध, और उसके अलावा भी कुछ और अपराध और अनर्थ हैं जो हम
जानेंगे ग्रेजुअली इस प्रेजेंटेशन में। अगर हम उनसे हमेशा बचे रहेंगे तो हम हरि नाम को जो जैसे चैंट करते हैं, जैसे हम शुरू में चैंटिंग करते हैं तो हम बहुत रेलिश करते हैं हरि नाम को। आप सब लोग जो अभी कुछ समय हो गया चैंटिंग करते, उनको ये रियलाइज होगा कि पहले जब शुरुआत में चैंटिंग की थी तो बहुत रेलिश करते थे चैंटिंग को, हाँ, क्योंकि शुद्ध नाम जप रहे थे। बट धीरे धीरे क्या होता है कि हम ये अपराध करते रहते हैं, तो अपराधों के कारण जो भगवान का रेसिप्रोकेशन है वो कम हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, इवन दोज पीपल जिन लोगों ने अभी नया चैंटिंग करना शुरू किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत हैवी ना लें, बट ये अपनी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने, ताकि जो हम आज रेलिश कर रहे हैं हरि नाम को वो आगे छूटे नहीं। ओके, नाउ नाम तत्व फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स हो गया, वी गेव वेरी लिमिटेड एंड द मेन वंस ओनली। तो अभी हम हमारे जो मेन आचार्य हैं वो क्या कह रहे हैं हरि नाम के बारे में, वो थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो सनातन गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी बृहद भगवतामृता 1.9 में, ओके, कौन पढ़ना चाहेगा इसको? यस, श्रीला सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम मत्रा 1.9। All glories to the blissful holy name of Shri Krishna, which causes the devotee to give up all the conventional religious duty, meditation and worship, when somehow or other uttered even once, awards liberation. Holy name of Krishna is nectar. It is my very life and my only treasure. Hare Krishna. Thank you. So, सनातन गोस्वामी आप सब लोग जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल हैं और हमारे संबंध आचार्य हैं, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और वृंदावन में उन्होंने कई जो मेन आज टेम्पल्स आप देख रहे हैं वो वापस डिस्कवर किए, क्योंकि औरंगजेब ने सारे वृंदावन के मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ये इंस्ट्रक्शन था, चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो जो सारे मंदिर अब लुप्त हो गए हैं, भगवान की लीला स्थलियां जो सब लुप्त हो गई हैं, उनको वापस उजागर करें। तो उन्होंने सारा कंट्रीब्यूशन 6 गोस्वामी को जाता है, तो उसमें प्रोमिनेंट है सनातन गोस्वामी, और एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है बृहद भगवतामृता। तो वो क्या नाम के शुरू में ही ग्रंथ के बता रहे हैं कि जय हो हरे, ये भगवान कृष्ण के नाम के, हाँ, उससे क्या होता है, कन्वेंशनल रिलीजियस ड्यूटीज, मेडिटेशन एंड वर्शिप, उसके सामने भगवान का नाम जो जप करने लगता है उसे ये सब चीजें फीकी नजर आने लगती हैं। और अगर एक भी बार, जैसे हमने अभी आपको हराम की बात बताई, हाँ, तो उस व्यक्ति ने राम बोला, हराम में मिला के, तो भी उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, क्योंकि मृत्यु के समय उसने राम बोल दिया, हाँ, तो इट अवॉइड्स, तो मुक्ति तो ऐसे ही मिल जाएगी, मोक्ष तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा उस व्यक्ति को। And then he's saying ये बहुत, इसमें बहुत रस है, it is the highest nectar and it is my very life and my only treasure। तो सनातन गोस्वामी के एक स्टोरी भी आती है, आप सब लोग शायद जानते होंगे, बट आई टेल यू ब्रीफली, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल हियर। तो एक बार एक व्यक्ति होता है, वो शिव जी का बहुत अच्छा भक्त होता है, तो वो बहुत प्रार्थना करता है लॉर्ड शिव जी से। उसको ऐसे लगता है कि क्योंकि वो गरीब होता है, निर्धन होता है, तो उसे लगता है कि अगर मेरे पास पैसे आ जाएं, हाँ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिससे कि मेरी पत्नी भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं और ऐसे अच्छे से चलता रहे। तो वो प्रार्थना करता है, तो लॉर्ड शिव उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, एक भक्त है मेरा, वो है सनातन गोस्वामी, वो वृंदावन में रहते हैं, वो उनके पास आप जाओ और वहां पर उनके पास उनसे सबसे बहुमूल्य चीज उनके पास है ना, वो मांग लो, एंड मेक योर लाइफ परफेक्ट।
सो वो व्यक्ति निकल जाता है, अपनी पत्नी को बताता है, पत्नी बहुत खुश होती है कि हाँ हाँ जरूर, दिस इज रियली अ मर्सी ऑफ योर लॉर्ड शिवा, सो आप चलो। तो वो ही गोज टू वृंदावन, एंड वृंदावन में सनातन गोस्वामी से मिलता है और सनातन गोस्वामी से बताता है कि मुझे जरूरत है पैसे की और मैं गरीब नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपके पास, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो बहुत प्रेशियस है, आप मुझे दे दोगे तो माई लाइफ विल बिकम परफेक्ट। सो सनातन गोस्वामी अभी समझ जाते हैं कि इसको बहुत ज्यादा मटेरियल डिजायर्स की भी फुलफिलमेंट करनी है। सो व्हाट ही डज इज ही सेज, वो जहां पर रहते होते हैं, यमुना के किनारे पे ही रहते होते हैं। एक्चुअली गोस्वामीज डिड नॉट हैव अ लिविंग प्लेस, यू नो, दे यूज्ड टू sleep under trees, different trees every night. So he said यमुना के किनारे यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, उसमें एक मणि पड़ी हुई है ना, क्या है वो? पारस मणि है। तो वो उठा के ले आओ। तो वो उठा के ले आता है, दिस इज व्हाट यू वांट। सो पारस मणि है, पारस मणि उसको पारस मणि बोलते हैं ना, जिससे कि सब कुछ टच करेंगे तो सोना हो जाएगा। हाँ, सो ही सेज ये वाली मणि आप ले जाओ। सो बहुत खुश हो जाता है, तो वो जाता है और ही टचेस एवरीथिंग एंड सब कुछ सोना हो जाता है, अच्छे से अमीर हो जाते हैं। तो पति पत्नी बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन पत्नी एक दिन कहती है कि जब सबसे बहुमूल्य चीज उन्होंने, लॉर्ड शिव ने आपको कहा था कि वो सबसे बहुमूल्य चीज आपको देंगे, हाँ, लेकिन वो ऐसी कैसी बहुमूल्य चीज है जो कूड़े में पड़ी हुई थी? हाँ, मुझे लगता है कि ना उनके पास और भी कोई बहुमूल्य चीज है जो उन्होंने नहीं दी है। हाँ, तो आप ये देखिए मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का नेचर कैसा होता है, इतना सारा मिलने के बाद भी हमेशा थर्स्ट बड़ी रहती है। हाँ, सो ही गोज बैक अगेन, ही सेज दैट आपने इतनी बहुमूल्य चीज थी तो आपने क्यों कूड़े में डाल के रखी हुई थी? तो सनातन गोस्वामी ने बोला, मैं तुम्हें जो बहुमूल्य चीज है ना वो दे नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तुम उसके एलिजिबल नहीं, उसके लायक नहीं उसको रिसीव करने के। तो वो थोड़ा सा उसको चैलेंजिंग फील हुआ कि हाउ इज इट? तो ही सेज नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे तो सबसे बहुमूल्य चीज ही चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उसके लिए, उस बहुमूल्य चीज को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सारी भौतिक आसक्तियां छोड़नी होंगी, जो सारे डिजायर्स हैं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मेरा इस प्रकार से मटेरियल जीवन हो, वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इस हाँ, मैं छोड़ने को तैयार हूँ। And then Sanatana Goswami tells him that you will have to now give this paras money, throw it in the Yamuna, go back and throw it in the Yamuna. So he hesitates a bit, but then he goes, he says, अगर मुझे और सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज प्राप्त करनी है तो मुझे इसको फेंकना होगा। तो he goes and throws it in the Yamuna. Then Sanatana Goswami says, now you are ready to receive the most, सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज आप रेडी हो गए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वो क्या था? सो सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? डज एनीवन नो द स्टोरी? क्या है सबसे बहुमूल्य चीज? हरि नाम। हरे कृष्णा माता जी, हरि नाम। हरे नाम मंत्रा। हाँ, सो हरे कृष्णा महामंत्रा में निषेध किया उस व्यक्ति को सनातन गोस्वामी जी ने। सो क्यों, आप में से कोई बता सकता है क्यों हरि नाम ज्यादा बहुमूल्य है पारस मणि से? कौन बता सकता है? माता जी, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना। तो क्या अर्थ हुआ? माता जी, गोलोक, हाँ, पर मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों बहुमूल्य है? हरि नाम क्यों ज्यादा बहुमूल्य है? कोई भी बता सकता है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एकमात्र ये हरि है जो हमें मोक्ष प्राप्त करवा सकता है, हमें कृष्ण के पास ले जा सकते हैं। पारस मणि से हम मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरा कर सकते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल डिजायर, जो हमारी सोल की तृप्ति नहीं होगी, और सोल की तृप्ति नहीं होगी तो हम कभी भी तृप्त नहीं होंगे, एंड देन वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लव हिम एंड look for liberation, which is the ultimate purpose of human life. Very well said, Neelam. You should preach to everyone. Very nice. No, not at all. We are just learning from you all. Very nice. तो हमारे जो मटेरियल डिजायर्स, अगर कोई भी चीज फुलफिल करेगी वो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं देगी,
है ना. हमें एक्चुअली चाहिए हरे कृष्णा महामंत्रा, जिससे कि हमारे we as soul get satisfied, right? So that is how that is most बहुमूल्य. तो रूप गोस्वामी जो सनातन गोस्वामी के ही भाई हैं, हाँ, आपने शायद सुना भी होगा डिवोटीज को चैंट करते हुए ये मंत्रा, ये जो श्लोक है, हाँ, इसमें I would like someone to read. Ruchi, would you like to read the translation? Yes, Mataji. माताजी श्लोक नहीं है? हाँ, श्लोक इसमें है नहीं. श्लोक is a little big and complicated, so I didn't put it here. Okay. Yeah. ये बुक का नाम है विदग्ध माधव. माधव उनकी बुक है, पर चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक मेंशन्ड है. Okay. I do not know how much nectar the two sons of Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. We then desire many millions of tongues. When that name enters the holes of the ears, I desire many millions of ears. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind, and therefore all the senses become inert. So he says, I desire many millions of tongues. So just by one tongue and 2 ears are not able to relish the holy name so much. So भगवान के नाम में उनको इतना अच्छा, इतना ज्यादा रस आ रहा है कि उन्हें लग रहा है कि ये तो कम है, एक जिह्वा और 2 कान तो बहुत कम है. हाँ, तो कई मिलियंस ऑफ टंग्स होनी चाहिए, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स होने चाहिए मेरे पास. हाँ, और भगवान का नाम जो है मेरे हृदय में नृत्य कर रहा है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कुछ भेद नहीं है. जब हम जप करते हैं, सच्चे मन से जप करते हैं, तो एक्चुअली भगवान हमारे हृदय में आके so we have these acharyas who are telling us कि actually हरिनाम कितना मीठा है. जीव गोस्वामी कहते हैं कि chanting is the chief means of attaining love of Godhead. तो अगर भगवान का प्रेम किसी को प्राप्त करना है ना, तो इसीलिए जैसे पारसमणि जो है हमें भौतिक सुख दिला सकती है, पर हरे कृष्णा महामंत्र हमें भगवान का प्रेम दिला सकता है, जो एक्चुअली सच में बहुमूल्य है. It's the chief means of attaining love of Godhead. It does not depend on any paraphernalia. चाहे आप बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, चाहे आपके पास धन नहीं है, चाहे आपके पास धन है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, आप किसी भी जाति के हो, हाँ, कोई भी चीज ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है कि वो जो मैंडेटरी हो हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के लिए. सबके पास एक जिह्वा है और 2 कान है. They can be used in this service. No qualification required. High birth, wealth, material qualification. ऐसा नहीं है कोई जो बहुत पढ़ा लिखा है या ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ वही जप कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ? By humility and meekness, one attracts the attention of Krishna and achieves Krishna prema, which is the complete perfection of life. तो 2 qualities चाहिए, humility and meekness. It is the most important element of devotional service. That's what he says. तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ था कि नवधा भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जप करना. और इसमें जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में भी सेम बात बता रहे हैं हमें. माता जी एक सेकंड, पॉइंट नंबर 2 एक बार फिर से बता दीजिए. पॉइंट नंबर 2. It does not depend on any paraphernalia. इसको बता दूं मैं आपको, समझ में नहीं आया क्या? ये समझ नहीं आया माता जी. हाँ, पैराफर्नेलिया का अर्थ होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है उसके लिए, है ना. जैसे अगर आपको डीटी वर्शिप करना है ना, भगवान के अर्च वगैरह घर में लाने हैं, तो उनके लिए हमें चाहिए है कि हम उन्हें बहुत अच्छे वस्त्र पहनाएं, है ना, उन्हें भोग अच्छे से दें, उन्हें आरती अच्छे से करें. तो ये सारी चीजें पैराफर्नेलिया चाहिए होता है, बहुत सारा एलैबोरेट अरेंजमेंट चाहिए होता है. लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने के लिए कोई अरेंजमेंट चाहिए हमको? नो. हमारे पास जीभ है, हमारे पास कान है ना, और उंगलियों पे निशान भी हैं, उससे भी काउंट कर सकते हैं. ठीक है. ओके, थैंक यू. हरे कृष्ण. ओके, सो अब देखते हैं श्रीला प्रभुपाद हमें क्या, उन्होंने क्या बताया है कि हमें क्या नाम तत्व के बारे में
Prabhupada has given a lecture which is really beautiful, और बहुत सारे devotees ने share किया कि ये जो lecture है बहुत it's very heart touching और ये सीधा heart के depth में जाता है. Somebody is unmute, please mute yourself. So I would like someone to read this, please. कौन इसको read करेगा? कोमल, आप पढ़ोगे इसको? कोमल, आप unmute करो पहले अपने आप. हरे कृष्ण माता जी. जी, हरे कृष्ण माता जी. Yes, माता जी. Chanting Hare Krishna is the sublime method for reviving our transcendental consciousness. As living spiritual souls, we are all originally Krishna conscious entities. Hare Krishna. One moment. Keep reading. Okay. Due to association with matter from time immemorial, we are all trying to be lords of material nature, while actually we are under the grip of her transcendent laws. Please read this also. Anyone can take part in the chanting without any previous qualification and dance in ecstasy. So आप देखेंगे बच्चे भी ना, इनफैक्ट प्रभुपाद used to say कि पहला सिम्टम है कि कोई हरे कृष्णा महामंत्र को एंजॉय कर रहा है, तो आप देखेंगे जब कीर्तन चल रहा होता है तो सबका डांस करने का मन करता है ना, अपने आप ही. जो आप वृंदावन जाएं या हमारे दिल्ली में राधा पार्थसारथी टेम्पल है ईस्ट ऑफ कैलाश में, उसमें जाएं जिसमें कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट लोग आते हैं, because it is on like the tourism map. So you will see people जो पहली बार आए हैं और हरे कृष्णा महामंत्र क्योंकि चल रहा है तो वो अपने आप नाचने लगते हैं. हाँ, बच्चे भी आप देखिए, उनको किसी ने सिखाया नहीं. हाँ, so अपने आप हृदय पे ऐसा इफेक्ट होता है कि everybody starts dancing. So because all of us are spirit souls actually, चाहे हम किसी अफ्रीकन बॉडी में हो, चाहे यूरोपियन बॉडी में हो, चाहे चाइनीज बॉडी पे हो, हाँ, चाहे इंडियन बॉडी में हो, है ना. We have seen in Mayapur, which is the headquarters of ISKCON, there are devotees from 160 countries living together, with Radha Madhav as their center, right? So we can see that even Chinese devotees, they are not able to pronounce the Hare Krishna Mahamantra clearly. Still, they are relishing it so much. In China, there is so much preaching going on. So this Hare Krishna Mahamantra is so powerful that it touches the soul of everyone. So आपकी बाहर की body की covering कैसे भी हो, it is not important. And we also saw जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से जा रहे थे, हाँ, उन्होंने अपनी पोटेंसी से जानवरों में भी वो स्पिरिचुअल तत्व जगा दिया. राधानाथ महाराज बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि उस समय हिरण और शेर जो जानी दुश्मन है, वो एक दूसरे को आलिंगन करके चूम रहे थे हरे कृष्णा महामंत्र गाकर. So that is the potency of Hare Krishna Mahamantra. So Chaitanya Mahaprabhu could even preach to the animals. So we can at least preach to human beings. Sorry. Yes. तान्या, आप इसको पढ़ोगे? तान्या भोला. हाँ जी मैडम. Chanting should be heard from the lips of a pure devotee of the Lord, so that immediate effects can be achieved. Hare Krishna. Yeah. So this is very important कि हम शुद्ध भक्त के मुख से सुने जब को. हाँ. और फिर आगे क्या लिखा है? Chanting from the lips of non-devotees should be avoided, just as one would avoid milk touched by the lips of a serpent because it has poisonous effects. तो कोई एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्मी कमाने के लिए गा रहा हो, हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र, तो उसकी चेतना कहाँ लगी हुई है? उसको लक्ष्मी कमाने में चेतना लगी हुई है. इसलिए उसके मुख से सुनना जहर
प्राप्त करने के बराबर है। जैसे अगर दूध में अगर सांप छू लेता है तो उसको नहीं हम सुनते, लेकिन अगर शुद्ध भक्त के मुंह से सुनते हैं, क्योंकि उसके चैंटिंग में कृष्ण स्वयं रहते हैं, तो इट टचेस आवर हार्ट. So he also explained the meaning of Hare Krishna Mahamantra, which I believe all of you would know. So we will not go deeper into this, but I just want to tell you that Hare means Radharani. We are addressing to Radharani, and Krishna means attractive. Na means he gives us bliss, and Ram is supreme pleasure. And Prabhupada explained that as long as we are under the influence of Maya, or this energy of the Lord, which is represented by Durga Devi, we are not going, because it is incompatible. Durga Devi has put us into a material situation. We are spirit souls, so we are not happy here. Until and unless we take shelter of Radharani, which is Hare, we will not be happy. It is an incompatible situation, Prabhupada says. So it is. We know that it's a spiritual call to the Lord. It should be like we gave the Harinam acronym. We said helplessness is the first qualification. तो जब हम जप करने बैठे तो हमारा मूड ये क्लियर होना चाहिए कि हम कितने हेल्पलेस हैं. जैसे एक बच्चा जो अपनी माता से हेल्प चाहता है, तो how genuinely he cries. So similarly we cry to the energy of the Lord. We seek help so that she can take us back to Krishna. Okay, does anyone have any questions so far? अगर किसी का कुछ सवाल Mataji, I have a question, but should I ask the question after the class? You can ask now, because now we will go into the second phase. Okay, so my question is that we know that all of us are chanting, and as we have discussed that this Harinam is all blissful and it is full of nectar. Then why is it so that different people achieve different levels of bliss while chanting the Harinam? Okay, that's a very nice question, but I'm not going to answer you now, because our second and third presentation are actually dealing with this subject matter. So I would request you to hold on till then, and maybe on Sunday evening we can revisit this question. Okay? Sure, Mataji. Thank you. Yeah. Hare Krishna, Mataji. I have a question. Yes. Can I say? Yes, please. Yeah. Okay. You said that even if we chant in error, yeah, ऐसे ही हम बोलेंगे, तो even then the name shows the effect. So what about listening to the holy name by, say, the animals or the plants? Does it have any? Do they get any sukriti because of that? By just listening? Of course, yes. That is how Haridas Thakur, once he was giving a lecture, he said that yes, we should chant the holy name loudly, and that is 1,000 times more beneficial, because it helps the plants, the animals, everybody around, even the insects, so they get benefited for sure. Yes. Okay. All right. Go ahead. Now Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Yes, Radhika, you want to ask a question? हाँ जी माता जी. जैसे आपने बताया कि दुर्गा माता जो है वो माया है, और अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सिर्फ दुर्गा माता को ही पूज रहा है और वो बिलीव करते हैं कृष्णा में, सब चीज कर रहे हैं कि हाँ भगवान है, कृष्णा है, तो उनका इफेक्ट दुर्गा माता से मतलब क्या रिलेशन क्या रहेगा? मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है. जैसे कि बंगालीज प्रॉपर होते हैं, वो दुर्गा माता का पूजा करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, तो उसमें क्या पर्पस क्या रहता है फिर पूजा का? एक्चुअली जनरली लोग दुर्गा माता से इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनको अपने मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करने होते हैं, है ना? दैट इज द ओनली रीजन. तो if we are looking for fulfillment of our material desires, तो कोई रिलेशनशिप होता है जो एक डेमी गॉड का लिविंग एंटिटी के साथ होता है ना? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है ना? सेल्फिश एक्सचेंज. हाँ, लेकिन कृष्ण को मानते हैं और या कृष्ण को दुर्गा माता के लेवल पे ही मानते हैं, तो वो अपराध है ना?
तो उसको थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा कि क्या उनका है। कृष्ण को ऐसा नहीं है कि हम दुर्गा देवी को रिस्पेक्ट नहीं करते। दुर्गा एक्चुअली एनर्जी है, राधा रानी की छाया ही है दुर्गा। ऑफर हर फुल रिस्पेक्ट एंड शी इज डूइंग हर जॉब, है ना। लेकिन वी एज फार एज जहाँ तक देवता कंसर्न है, हम उनको रिस्पेक्ट करते, बट हम पूजा कृष्ण की करते। तो ये एक भक्त का ये सही एक सिचुएशन है, राइट। जैसे माता जी नवरात्रि होती है तो उसमें हम लोग अभी जैसे नॉन डिवोटी फैमिली है या फिर कह लो कि कृष्ण में उतना प्रभाव नहीं है, लाइक कृष्ण को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब नवरात्रि होते हैं तब अनियन गार्लिक के बिना सब चीज खा सकते हैं, तब दे आर वेरी पायस कि हाँ नवरात्रि है जी कुछ नहीं खाना ऐसा। और वैसे नॉर्मल डेज पे दे आर लाइक नहीं नहीं तो क्या हुआ अनियन गार्लिक खा लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कोई। तो उस सिचुएशन में समझाना हो अगर किसी को कि जब आप उन 9 डेज रह सकते हो तो अब क्या दिक्कत है। देखिए ये अनियन गार्लिक और बाकी जो चीजें हैं ना वो बहुत छोटी चीजें हैं। अभी अगर हम सबको हरे कृष्णा महामंत्र से जोड़ें जो स्वयं कृष्ण है तो ऑटोमेटिकली हृदय परिवर्तन होता है। अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग में लग जाएं, है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपनी प्रेजेंटेशन में बार बार ये बात बोली थी कि इसमें जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो हम अपने ऊपर लागू करें, है ना। ये नहीं देखें कि दूसरे पे कैसे लागू होती है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का यही नेचर है ना, हम दूसरों पे लागू करने लगते हैं चीजें। तो अगर हम अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे और भगवान से उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप ये सब इसलिए बोल रहे हो बिकॉज यू रियली केयर अबाउट देम, यू रियली लव देम, यू वांट देम टू गो बैक टू कृष्णा, ना, ऑल दैट इज अंडरस्टूड। बट हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है कृष्ण तक जाने की, है ना। तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को, वो अपने आप हृदय से आना होगा। अगर हम सबसे प्रेम का संबंध बना के रखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हरे कृष्णा महामंत्र करो। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद से, ये प्रभुपाद लीलामृत लिखा भी हुआ है, सेकंड में है, प्रभुपाद ये तो बहुत है, ये करना तो बहुत मुश्किल है। किसी का माता जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, आप लोग म्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है? Everybody, please mute yourself because I'm also facing a lot of disturbance. Please mute yourself, everyone. So, एक बार किसी भक्त ने आके प्रभुपाद से पूछा, बड़ा मुश्किल है प्रीचिंग करना, है ना, किसी को कन्विंस करो, सब लोग माता को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं, इसको मानते हैं उसको मानते हैं, बड़ा मुश्किल है प्रचार करना, मैं तो नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने बोला देखो प्रचार करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कैसे कठिन नहीं है? प्रभुपाद ने बोला कि आप केवल सबको हरे कृष्णा महामंत्र से जोड़ो, ये न के न प्रकार है ना, उनको हरे कृष्णा महामंत्र जप करवा दो। अगर वो हरे कृष्णा महामंत्र जप करने लगेंगे, फिर कृष्ण और उनके बीच की बात है, अपने आप कृष्ण प्रचार करेंगे, आपको क्यों चिंता करनी है ना। देखो जो व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहा है वो कृष्ण के संपर्क में आ गया, राइट। तो यू प्लीज समहाउ दिया था, जैसे कोई व्यक्ति माता रानी की 1 घंटा पूजा करता है रोज, नो प्रॉब्लम, आप बोलो कि आप उसी पूजा में एंड में या शुरुआत में आप 11 बार हरे कृष्णा महामंत्र भी जप लिया करो, या 21 बार या 51 बार या एक माला 108 बार, तो ऑप्शंस दे सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से वी शुड टेक केयर ऑफ पीपल एंड एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, यू शुड नॉट फोर्स देम और इवन एक्सपेक्ट, राइट। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, अभी और क्वेश्चंस नहीं लेंगे, नहीं तो हम सेकंड पार्ट इसका कर नहीं पाएंगे। इन द एंड वील हैव मोर टाइम, वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस। तो ये शिक्षाष्टकम का पहला वर्स है जो आप सब लोग जानते ही होंगे, हाँ, चेतो दर्पण, इसको एक साथ चैंट कर ले हम लोग, आप लोग अपने घर में चैंट कीजिए और मैं यहाँ पे। अर्जुनम भव महादावाग्नि निर्वापणम भैरव चंद्रिका वितरणम आनंदावर्धनम प्रतिपदम नामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो आप सब लोग जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8
इंस्ट्रक्शंस दिए, दैट्स ऑल. ही डिड नॉट, उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखे, जबकि उनके डिसाइपल्स ने, उन्होंने अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्ट किया तो उन्होंने वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने खुद केवल 8 ये शिक्षाष्टकम दिया, 8 इंस्ट्रक्शंस जिनको बोला जाता है. तो इसका जो पहला शिक्षाष्टकम का पहला जो इंस्ट्रक्शन है, that actually tells us how, what are the effects of Hare Krishna Mahamantra. तो आप ये देखिए, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले बोला, उन्होंने बताया कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है इसकी विजय हो, हाँ, let there be victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna. तो परम विजयते बोला. परम का क्या अर्थ होता है? सुप्रीम. या सुप्रीम है ना, टॉप मोस्ट, इससे ऊपर और कुछ नहीं है. तो भगवान ने क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? परम विजयते. सो ये परम है, जिससे कि हमारी जो तुरंत परम बोला कि ताकि हमारी जो श्रद्धा है हम सारी इसी में डाल दें, है ना, और किसी अनेक अनेक चीजों में, इस मंत्र में, उस मंत्र में, उसमें श्रद्धा नहीं डालें, सारी श्रद्धा इसमें डाल दें. और श्रद्धा से धीरे धीरे वो हमें शरणागति की तरफ लेके जाएंगे, तभी वो परम विजयते बोल रहे हैं. तो हम ये जो इसमें 7 इफेक्ट्स बताए हुए हैं हरे कृष्णा महामंत्र को चैंट करने के, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. चेतो दर्पण मार्जनम. तो चेतना से आपको क्या समझ में आता है? एनी ऑफ यू, वुड यू लाइक टू टेल मी, चेतना का क्या अर्थ है? Consciousness. Consciousness. Yeah, right. So chetah, cheto, it comes from the word chetana, which is consciousness. तो हमारे कॉन्शियसनेस को किससे कंपेयर किया गया है यहाँ पे? दर्पण से, मिरर से. एंड मार्जनम, यू नो, मार्जनम मीन्स क्लीनिंग, राइट? तो हमारा चेतना रूपी दर्पण जो है हरे कृष्णा महामंत्र उसको साफ करता है. तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं. हमारा जैसे एक शीशा है, शीशे में कुछ अपनी इंडिविजुअलिटी है कि शीशा कुछ करके दिखाता है, ऐसा कुछ है उसमें? शीशा केवल वही रिफ्लेक्ट करता है जो उसके सामने खड़ा होता है. Isn't it simple? It has no other thing. तो अगर ये हमारा शीशा साफ नहीं है या टेढ़ा मेढ़ा है, तो कैसा, जैसे हम बचपन में मेला कभी आप बच्चों ने पता नहीं किया होगा कि नहीं, पर मेले होते थे पहले, उसमें एक जगह जाकर टेढ़े मेढ़े शीशे लगे होते थे, कुछ कॉनकेव कुछ कॉन्वेक्स, और उसमें जाकर देखते थे तो हम टेढ़े मेढ़े नजर आते थे. तो नाउ हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, इट इज लाइक सारे इम्प्रेशंस को कैप्चर कर लेती है, हमारे कई जन्मों के सारे इम्प्रेशंस को कैप्चर कर लेती है. और उसमें जैसे एक कैमरा होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है. जब हम चाहते हैं उसके इम्प्रेशन, उसमें से रिकॉर्डिंग हम निकाल के देख सकते हैं. उसी प्रकार से हमारे जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही पानी से डरते हैं. माता जी डिस्टर्बेंस आ रही है काफी ज्यादा, अनम्यूट हो गए हैं सब. अनम्यूट हो गए हैं सब लोग, तो प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को. I'm trying to mute some people so I can see our unmute. चंचल आंटी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को. मैंने म्यूट पे हूँ मैं तो. हाँ, ओके. I'm muting some people. Now it's fine. Right? Okay, fine. All right. So हमारी जो चेतना को दर्पण से कंपेयर किया, because it is reflecting what we actually are. राइट? तो चेतना रूपी दर्पण का मार्जनम या क्लेंजिंग हो रही है. ना अभी क्या है कि हमारी चेतना रूपी दर्पण पे बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है. हाँ, तो हमारे what is this dust? It is the dust which contains our material impressions,
because we have desires to enjoy separately from Krishna, and it is also our bad habits, our anarthas. Correct? So ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, it is so powerful. और कोई भी हमारे पास ऐसा कोई एजेंट नहीं है, क्लीनिंग एजेंट नहीं है, कहीं से भी कोलिन ले आए या कोई भी ऐसा डिटर्जेंट ले आए जिससे कि हमारी कॉन्शियसनेस क्लीन हो सके, not possible, right? But Hare Krishna Mahamantra is so powerful that it goes right inside the heart, right inside the Chetna. तो चाहे हम relish नहीं भी कर रहे हो हरे कृष्णा महामंत्र, लेकिन it is doing its job of cleansing our hearts. So our hearts have accumulated this dust. हाँ, तो कई बार आप देखेंगे जब हम कई समय से एक कुछ भी जैसे शीशा है अगर बाहर पड़ा रह गया तो उसपे कितनी मोटी मोटी मिट्टी की परत जम जाती है. कई बार ऐसे होता है कि वो सॉलिडिफाई सी हो जाती है. सो डिफिकल्ट टू स्क्रब इट आउट. शीशा हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसे बाहर रखते हैं, तो उसी प्रकार से वी हैव बीन इन द मटेरियल वर्ल्ड फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्थ्स, राइट? सो दिस ये जो डस्ट है, ये जो डस्ट की लेयर है, इट इज वेरी वेरी बिग. एक्चुअली इट इज लाइक काई, इट इज लाइक सो स्ट्रॉन्ग. इतना ज्यादा है कि अभी मिरर जो है बोर्ड के समान दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है वो तो नजर ही नहीं आ रहा है. तो जैसे कुछ भक्त लोग कहेंगे हम तो इतने दिन से चैंटिंग कर रहे हैं, 1 साल हो गया चैंटिंग करते करते, फिर भी अभी भी गुस्सा नहीं कम हुआ या फिर अभी भी अनर्थ नहीं गए. तो इस प्रकार से कहते हैं. तो ये सोचना चाहिए कि हमने कितने कितने जन्म लगाए इस मिट्टी को इकट्ठा करने में, और अब सोच रहे हैं कि 1 साल की चैंटिंग से या 2 साल की चैंटिंग से या 10 साल की चैंटिंग से कम निकल जाएगी. नहीं, डिफिकल्ट है. इसलिए वी शुड बी उत्साह के साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा. ठीक है? तो ये पहला इफेक्ट है हमारा जब हम जप करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम होता है. फिर दूसरा इफेक्ट है भव महादावाग्नि निर्वापरणम. तो भव का अर्थ है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. हाँ, बार बार आना, बार बार जाना. महादावाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर से इसको कंपेयर किया गया है. ये जो लाइक फॉरेस्ट फायर, इट नेवर एंड्स. Does anyone know कि वो कैसे शुरू हुआ? किसी को पता नहीं कहाँ से शुरू हो गया फॉरेस्ट फायर. हाँ, पेड़ों की अपने आप फ्रिक्शन हुई और फॉरेस्ट फायर शुरू हो गया. तो ये जो भव है, ये जो भव रोग है, यानी हमें बार बार आना मटेरियल वर्ल्ड में, पुनरपि जननी पुनरपि जननी, whatever, you know, we are coming back again and again in this material world and it is not ending. But there is one solution. This Mahadavagni can be extinguished by chanting of the Hare Krishna Mahamantra. So, आप मुझे बताइए कि जब जंगल में आग लगती है तो कैसे बुझाई जाती है उसे? किसको पता है? कौन बता सकता है? By rain, raining or spraying something, water. By spraying water? You said? Or rains heavily, you know, then it gets doused. Correct. Yeah. That is the only way actually. That is the only way. कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना बड़ा फायर डिपार्टमेंट हो किसी कंट्री में, they cannot extinguish the forest fire. Only the rains. It has to be a downpour of rains. That only can extinguish it. Similarly, जो हमारा ये जो माता जी कुछ पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं जिससे कि वो आग बुझ जाती है, आगे नहीं बढ़ती है. ओके, ऐसे भी होता है, मुझे नहीं पता. बट अगर इस प्रकार की अग्नि को देखा जाए तो इट कैन ओनली बी एक्सटिंग्विश्ड बाय अ डाउनपोर ऑफ रेन कमिंग फ्रॉम रियली हैवी क्लाउड्स. तो लेकिन हमारे केस में so there has to be something, ये जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, there has to be something which has to come from the world beyond us, right? And that is, आप में से अभी किसी ने बोला था ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. तो गोलोक से आया हुआ ये जो प्रेम धन है, ये जो डाउनपोर है नेक्टर की, जो हरे कृष्णा महामंत्र का नेक्टर है, वही इस महादावाग्नि को
जो हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ सफर करना पड़ रहा है, उसको एक्सटिंग्विश कर सकता है ओनली दी हरे कृष्णा महामंत्र. सो तो हमें जैसे ऑर्डर दिया गया, श्रीला प्रभुपाद ने 16 राउंड चैंट करने का ऑर्डर दिया हर रोज, है ना. तो वो जो ऑर्डर अगर हम फुलफिल करते हैं तो गुरु स्वयं आके इस अग्नि को बुझाते हैं. जैसे हम सुबह पढ़ते हैं ना, हमारे जब हम संसार मंगल आरती करते हैं सुबह 4:30 बजे, संसार दावानल से ही शुरू होती है वो मंगल आरती, है ना. संसार जो है दावानल यानी फॉरेस्ट फायर से कंपेयर किया गया है. ओनली बाय फुलफिलिंग द ऑर्डर ऑफ द गुरु, by chanting 16 rounds every day, can we extinguish this forest fire. Okay. So the third effect is Shreya Kairava Chandrika Vitranam. Shreya means all auspicious, and Kairava means a lotus, a white lotus. Chandrika Vitranam. तो आप देख रहे हैं इस, I found this picture very beautiful. इसमें आप देख रहे हैं मून की रेज पड़ने से लोटस जो है वो खिल रहा है. तो इस सेंटेंस में एक्चुअली हमारे हृदय को लोटस से कंपेयर किया गया है. So it is all auspicious and Chandrika Vitranam, it is distributing so much nectarian moon rays कि हमारा जो हृदय का जो लोटस है वो blossom कर रहा है by the nectar of the Hare Krishna Mahamantra. So can anyone tell why sun? Why not sun? Why moon? Quickly, can someone tell me? We are actually ourselves in the fire of this earth, I feel. You know, ऐसे ही हम लोग इतने तप रहे हैं that we need some cooling effect now, you know, to give us peace. Yes. तो मून के दो काम होते हैं, एक तो वो ठंडक देता है और वो नरिश करता है वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, उनमें जूस डाल के, राइट. So similarly, so this Hare Krishna Mahamantra sends these moon rays which have a cooling effect and they nourish. Like when we are very जैसे अभी बोल रहे हैं हम तप रहे हैं, जब हम तप रहे होते हैं तो we need the cool effect also and we need some nice juice to drink as well. So it is supplying that. So we can see. And why is it a white lotus? Why not a pink or a red lotus? Why? Can anyone guess? It's the symbol of purity. Yes. So, अगर red होगा तो it could be like mode of passion. So it brings us to the pure mode of goodness. White means pure mode of goodness. That is how it is compared to a white lotus, right? Thank you. Okay. Next is Vidya Vadhu Jivanam. So this means that chanting is the life and soul of all knowledge. So knowledge here is compared to a Vadhu. Vadhu means a bride, right? तो भगवान कृष्ण और भगवान का नाम अभिन्न है, राइट. तो भगवान की भक्ति करने से हमें दो चीजें हमने पढ़ा है ना, दो चीज प्राप्त होती हैं. भक्ति के दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान और एक वैराग्य, ठीक है. तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भक्ति देवी आती है तो हमें हमारे अंदर से अपने आप ही ज्ञान आना शुरू हो जाता है. जैसे हम देखते हैं कि डिवोटीज जिन्होंने चैंटिंग करना शुरू किया है वो धीरे धीरे अपने आप ही रूल्स फॉलो करने के लिए स्ट्रांग हो जाते हैं. दे वांट टू फॉलो द रूल्स एंड दे स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन भक्ति automatically, and they get the real knowledge is to know that I am a spirit soul and my connection is only with Krishna. So that knowledge is what comes automatically in our heart when we start chanting the Hare Krishna Mahamantra. There's still some disturbance happening. Let's just put some more people on mute. Okay, so the next is Anandambudhi Vardhanam. Ambudhi means an ocean. अच्छा, आप लोग को पता है कि कौन सी 3 प्रकार के आनंद हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आनंद. कोई बता सकता है? ओके, मैं बताती हूँ. एक तो मटीरियल आनंद है, भौतिक सुख. दूसरा बताते हैं कि ब्रह्म का सुख, ब्रह्मानंद, ब्रह्म में मर्ज होने का, लीन होने का सुख. और तीसरा है जो भगवान के प्रेम से सुख मिलता है. तो
जो भौतिक सुख है उसको एक बूंद से कंपेयर किया गया है, और ब्रह्मानंद के सुख को एक गाय के बछड़े के पैर में जितना पानी आ जाता है, हाँ, उसके हूफ प्रिंट के निशान में जितना पानी आ जाता है, उसको ब्रह्मानंद के सुख से कंपेयर किया गया है, और ओशन को कंपेयर किया गया है उस सुख से जो हमें भगवान के साथ संबंध रीएस्टैब्लिश करने से मिलता है। तो ये बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पर कि आनंद की जो आंबुदी है, आनंद का जो ओशन है, इट कीप्स इंक्रीजिंग। वी हैव सीन सो मेनी रिवर्स, इतने सारे जो रिवर्स हैं समुद्र में जाके गिरते हैं, पर क्या कभी रिवर भर जाता है? क्या does it overflow? It never does, right? So आनंद की अम्बुदी जो इसमें बढ़ती जाती है, keeps going more and more and more. So one feels as gradually as we keep chanting the holy name, we feel more and more and more happiness as we gradually go on. जैसे कृष्णा ने भी, भगवान ने भी भगवत गीता में बताया कि इस प्रोसेस को सुख से किया जाता है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सो वी विल सी, एंड नॉट ओनली सुख से किया जा रहा है, बट सुख हर स्टेप में इंक्रीज हो रहा है। देन द नेक्स्ट इज प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। हर स्टेप पर पूर्ण अमृत, पूर्ण मतलब कंप्लीट, अमृत मतलब नेक्टर, नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, आस्वादनम मतलब टेस्टिंग। सो हम हर स्टेप पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति में, वी विल रियलाइज दैट हम हर स्टेप पे हमें अमृत नेक्टर जैसा फील हो रहा है। हाँ, सो एंड दिस वन इज सर्व आत्मा स्नपनम। हाँ, तो स्नपनम का अर्थ है कि स्नान करना। हाँ, तो लाइक व्हेन वी टेक अ बॉडी बाथ, हम जब शरीर को स्नान कराते हैं तो हमें रिफ्रेश फील होता है, एंड वी फील मोर एनर्जेटिक एंड वी फील कूल्ड। सिमिलरली चैंटिंग हैज दिस इफेक्ट ऑन सर्वात्मा, ऑन एवरीवन। हाँ, तो जैसे हम लाउड चैंटिंग संकीर्तन में भी बाहर जा रहे थे, तो लोग जो सुनते हैं उनको भी, उनके हृदय को भी पैसिफाई करती है हरे कृष्णा महामंत्र। हाँ, एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द फीवर ऑफ कंडीशनल एग्जिस्टेंस। हाँ, तो जैसे हमें ज्वर है, अभी बुखार है, क्या है हमारा बुखार, कि हमें मटीरियल आसक्तियां बहुत हैं, हम हमेशा भौतिक आसक्तियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो उस सबको क्षमन करता है, उस सबको शांत करता है। ठीक है, सो दीज आर दी 7 इफेक्ट्स ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र। ऐसा हो सकता है कि हम अभी सब चीजों को कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, स्पोरेडिकली एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने उत्साह को बनाए रखें और चैंटिंग करते रहें, और हम देखेंगे कि ये सातों के सातों इफेक्ट्स कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? माता जी, ये सर्व आत्मा स्नपनम is taking bath, or it means body? Sorry? Is this literal meaning, snapanam? Snapanam means bathing. Yeah. And sarva atma matlab, you can say sarva atma. Sabki atma. Sabki atma. Everybody's soul. Yeah, it's taking a bath. Hema, do you have a question? I can see a hand here. Hare Krishna. Does Hema have a question? Mataji, I have a question. Can I speak, please? Yes, please. Why has Prabhupada mentioned 16 rounds only? Yeah. Is there some logic to it, or? Actually, the previous acharyas had fixed the name, fixed the number of 64, right? So minimum, 64 rounds were given to everyone to chant. But when he started preaching in the West, he realized that people don't have so much time or the energy to do so much chanting. So he reduced it to 16 eventually. He tried to reduce it to 32, then 25, then eventually 16. He said 16 and no less, like that. Just
So the Acharya decides basis time, place, and circumstances. So chanting of Hare Krishna Mahamantra is a Yuga Dharma for sure. But how much can we do? So basis that Acharya of that particular age will decide. So that's what Prabhupada ne decide kiya, and that is what we are following. Yeah. Hare Krishna Mataji, can I ask? Yes, please. Yeah. So this is like regarding the we say Chetu Darpanam, Marjanam. You had talked of consciousness. You talked of the consciousness, which is, over the years, the consciousness has been, traveling in so many bodies, different bodies, and so it is also collecting the dust of each, lifespan that it has through. You also talked of the heart being not so cleansed. So it basically talks of cleansing your heart as well. That the chanting enables that the heart also gets cleansed. There is definitely, there is a difference between consciousness and heart. How can we actually, in a defining manner, it's difference to somebody, like if they're talking on the same content? Actually, heart is not the organ we are talking about, right? I know. Yeah. So, Chetana actually refers to the soul, the mind, and the consciousness. Three things. Okay. Right? All the three things. Okay. Okay. Cheto Darpan Marjanam, when we say, it is actually cleansing all these three things. Hare Krishna Mahamantra is cleaning the mind, cleaning the soul of its impressions, and cleaning the consciousness thereof. Right. Thank you. That does clarify the whole thing. Yeah. All right. Thank you. Okay. Anyone else has a question? Mataji, I have one question. Could you just explain once again, Shreya Kairav Chandrika Vitarnam? I could not get it because there was internet problem. Okay. So, Shreya Kairav Chandrika Vitranam. Shreya, you know what is Shreya? Shreya. और auspicious, राइट? प्रेयस होता है जो हमें थोड़ा सुख देता है अभी, है ना? जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 10 गुलाब जामुन खा लिया, but it's not really good for me. It might just spoil my stomach. श्रेयस वो होता है जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, as in the longer run it is good for me, right? So इसमें क्या बता रहे हैं? श्रेया कैरव, कैरव means the lotus flower, right? Chandrika Vitranam, Chandrika means the moon. Vitranam matlab it's distributing the cooling moon rays, because of which my heart, which is like a lotus, it is blooming. So when the lotus blooms means it is very happy, right? So the lotus is blooming, and the lotus is white in color. That means it is also getting rid of the mode of passion and mode of ignorance. ना उसमें कोई dark color है, ना कोई pale color है. It is pure white. तो सतोगुण में आ रहा है, जो चेतना या जो हृदय है चेतना में आ रहा है, सतोगुण में आ रहा है ना? That's what it means. Is it clear? गालगड काम है. Okay. बघायचं तुला, बघाय का नाही? Could you please put yourself on? Yes, na? Requesting everyone to put yourself. Okay. Yes, please. Okay. Does anyone have a question? No questions. Okay. Hare Krishna Mataji. Yes, please. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I'm sorry, Mehak, could you please say it again?
Mataji, I wanted to ask, like sometimes it happens like we know everything in about chanting, and still we make so many offenses, and sometimes we just neglect to hear that we know all this. Still we are not able to do. Then why to hear again? Then what should we do? Like how should we train our mind in this? That's what I'm going to ask you. Can you see the slide now? No. You can see the slide? I'm sharing the slide with you. Yes, Mataji. Yes. So, yes, Mataji. Title of all this, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुरागः. इतने सारे benefits भी हैं. It is taking us actually out of this material world to the spiritual world. It is giving us so much love of Godhead. Still, we are not interested in chanting. We have no anurag. We have no love for chanting. That is my question also. That question will be answered tomorrow. Is that okay? So Mataji, it is like it is an offense. Sometimes it is an offense to holy name that we are not listening to it. We are not listening to the lecture. So how should I train my mind in that when it neglects to hear that you know everything? Then what should how should I train my mind in that way? No, you have to hear. What should I say to my mind? That Krishna will answer tomorrow. And that's a part of the presentation. So you please come tomorrow. Okay. Yes, Mataji. Yeah. Okay. Sure. Yes. All right. So if nobody has a question. Mataji, once you mentioned one Goloke Prem Dhan. What is that quote? That quote is Golokir Prem Dhan Hari Naam Sankirtan. गोलोक से आया है. गोलोक से प्रेम धन आया है. प्रेम धन. हाँ, it is the Lakshmi. वो हरि नाम का संकीर्तन. हरि नाम का संकीर्तन. Thank you. Okay. Hema, do you have a question? I can see a hand. No. Okay. All right. Okay. Anyone else has a question? Okay. Excuse me, Mataji. Yes, please. Mataji, I have a question. Hare Krishna. Yes, Manali, I can hear you. You please say. Mataji, my question is, it may sound a bit stupid, but you just told that just by hearing the name of Hare Krishna, moksha prapt ho jayega. But what about the people who are doing chanting in the morning and doing so much for Krishna? तो फिर हम सोच सकते हैं ना, just by hearing the name of Krishna we get all this, so why to do so much of मेहनत? तो मोक्ष और कृष्ण प्रेम में फर्क है बहुत. अच्छा. Krishna prem means establishing a relationship of love with Krishna, love and service. Whereas what is moksha? Moksha is just merging into the light. It's not a permanent situation also. It's a temporary situation. और उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें कितना आनंद है, जितना एक गाय के बछड़े के रूप में आता है, कितना आनंद है. Okay, but the ultimate goal is to attain the moksha. No, ultimate goal is to attain Krishna prema. Like we have a superset and we have a subset. आपने पढ़ा होगा मैथ्स में. तो जिसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है, जिसको कृष्ण के धाम में जाने को मिल जाता है, वो एक्चुअली ऑलरेडी उसको मोक्ष प्राप्त हो गया ना. मोक्ष का क्या अर्थ है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी, पुनरपि जन्म से छुट्टी, है ना.
तो वो Okay. मोक्ष है ना, उसको मोक्ष ऑलरेडी मिल गया, जो भगवान के धाम चला गया उसको प्रेम भी मिला, और उसे मोक्ष तो बोलते हैं कि मोक्ष तो नौकर बन जाता है उस व्यक्ति का जो भगवान के धाम जाने के लिए लिप्त हो जाता है। Okay. Thanks, Mataji. All right. Okay. Hare Krishna Mataji. Yes. Dhanapranam Mataji. Mataji, there is a question in the chat from Harshita Mataji. Shall I read it out? Yes, please. Hare Krishna Mataji, milk is material and hence can be poisoned by serpent, but Harinam is transcendental. How can we understand the concept of poisoning in relation to Harinam? Very nice. Okay. So this is an analogy, है ना? Analogy में कुछ material चीज को लेके example दिया जाता है. तो ये ऐसा नहीं है कि दूध मटेरियल है, दूध को स्पिरिचुअल बताया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है. पर हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति जिसका इंटेंशन भगवान की प्रसन्नता नहीं है, है ना? There's one person who's singing for the pleasure of the Lord, and the vibrations coming out of his mouth are actually going to transform our heart. However, there's another person who is singing so that he can sing beautifully and earn a lot of money out of it. Then his consciousness is actually in the money that he is going to earn out of it. So, उसको अगर हम सुनेंगे तो वो purifying effect missing होगा. Although उस व्यक्ति के लिए वो हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना बेनिफिशियल है, उससे उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमारा फायदा नहीं हो रहा है, राधा हमें नुकसान हो रहा है ना? हमारी चेतना भी अगर हम ऐसे ही, जैसे हम बॉलीवुड के गाने सुनते रहते हैं, हाँ, तो हमारी चेतना भी वैसी हो जाती है. तो वर्सेस हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से हरे कृष्णा महामंत्र सुने, it has a very soothing effect, it has a very purifying effect. While on the other hand, if we hear a Bollywood song which talks about lust, it contaminates our senses. Similarly, a person who is singing for money or for some fame or something, उसके vibration से हमारा consciousness contaminate हो जाता है. Whereas a person who's singing only for Krishna, उससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है. Right? That is what Sanatana Goswami is trying to say. Is this okay? Is the answer okay? बट इसमें मुझे एक क्वेश्चन है माता जी, जैसे आपने बोला कि जो पैसे के लिए चैंट कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उससे हमारा कॉन्शियसनेस कंटामिनेट होता है, बट एक तरफ ये भी बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से भी हम प्योरीफाई भी होते हैं, मन चेंज होता है unintentionally, unknowingly. Then how can we understand this? हाँ, मैंने आपको यही बोला ना कि वो जो व्यक्ति चैंट कर रहा है, although he is doing it for money, but वो व्यक्ति चैंट कर रहा है तो उसे लिबरेशन या मोक्ष मिल जाएगा, है ना? Because he is getting purified, right? When that person is chanting, he is getting some credit, है ना? लेकिन हम उसे क्यों सुने, है ना? जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम शुद्ध भक्त के मुख से सुन सकते हैं, right? That's what I'm trying to say. It is beneficial for him, but it's not good for us. Yeah. Okay. All right. Does anyone have any other question or comment? All right. So we will meet tomorrow. Same time. And we will discuss as to why, in spite of all the benefits that we have seen in the Hare Krishna Mahamantra and all the, all the scriptures, all the acharyas telling us that we should chant the holy name. We can get so much out of the holy name, still we are not getting that relish. So we will get to tomorrow what is the answer to all these questions, right? So Thank you, Mataji. So much for the wonderful session, Mataji. Thank you so much, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you so much. Thank you so much, Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, Rashmi ji. Thank you so much. Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna. Thank you.